mainly about our personal life. और हम पिछले कल के दिन भी हम नया वाचा की जो जीवन के बारे में हम विचार कर रहे थे। As per the Sudhakar told that the new convent life is not possible without the help of the Holy Spirit. जैसे हमारे भाई सुधाकर बोल रहे थे, नए वाचा की जीवन पवित्र आत्मा के बिना असंभव है। Our Lord Jesus himself told it in John chapter 15 verse 5 we read that I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. That is the main thing that we have to translate. For apart from me, you can do nothing. और हम जैसे भाई ने कह रहे थे वैसे हम आज भी विचार कर रहे हैं कि यीशु ने भी खुद कहा था कि मेरे बिना तुम्हारे जो जीवन जो पवित्रता की जीवन जो असंभव है। इसका हम यूहन्ना 15 की 5 में हम पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ। मैं ताकलता हूँ, तुम डालियां डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें हूँ, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसको और हम विचार करने की जरूरत है। जो शब्द ये है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। When our Lord was in the world physically, he was teaching his disciples, and when he was about to leave the world, he told that I will not leave you as orphans. I will ask my heavenly Father to send you the Holy Spirit. So let not your heart be troubled or और let it be fearful. और यीशु मसीह जब इस दुनिया को छोड़ रहे थे, जो जो स्वर्ग जा रहे थे, उसी टाइम उन्होंने ये बात कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ होकर नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे दिल व्याकुल ना हो, और मैं तुम्हें मेरे पवित्र आत्मा दूंगा करके यीशु ने कहा था। So in verse 26, chapter 14, verse 26, we read like this, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. और हम यूहन्ना 14 के 26 में ये पढ़ते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। So in these days when we are in the world, the Holy Spirit is teaching us through his Spirit in our heart and also through और the letters written by the apostles by the inspiration of the Holy Spirit. और इन दिनों में हम दुनिया में रहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की लिखित और जो प्रेरितों के द्वारा जो लिखित जो पत्रियां हैं उसके द्वारा हम हमसे पवित्र आत्मा बातें करता है। So today, in the light of the New Testament and the writings of the apostles, I want to share the importance of the family life. और आज हम नया नियमों की इस रोशनी से जो प्रेरितों के लिखी हुई लिखित जो पत्रियां हैं उसके द्वारा पारिवारिक जीवन में नए वाचा के जीवन के बारे में हम विचार करेंगे आज। Our elder brother, Zach Noonan, has taught us about the ministry. The ministry is just like a three-story buildings. और हमारे जो एल्डर जो प्रोकाउं जो हमारे जैकपुरन जो है हमें बताते हैं, ये सिखाते हैं, सेवा जो है एक 3 मंजिला इमारत की तरह है। In that, the first story, that means the ground floor, refers to the personal life of each one of us. और जो बुनियादी या नींव की अगर हम बात करेंगे तो हमारे व्यक्तिगत जीवन है। Our obedience to the word of God, our spiritual life, our relationship, personal relationship with God, our Father. और हमारे व्यक्तिगत आज्ञा मानना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन, पिता के साथ हमारे संबंध। That was which we were meditating yesterday. और इसी के बारे में कल हम विचार कर रहे थे। But today I want to concentrate on the family life, the second story of that building. और उसी में हम दूसरे जो मंजिल है वो पारिवारिक जीवन, उसी में उसके बारे में आज हम थोड़ा विचार करेंगे। The third story comes the church, new covenant church. और ये तीसरी मंजिल जो है वो हमारे कलीसिया के बारे में है, वो आएगा कल।
If we want to build a new covenant church, below that we need the foundation. First, our personal life, and second, our family life, and third story only the church life. और अगर हम ये नया नियम नया वाचा की अगर कलीसिया बनाना चाहेंगे तो ये तीनों जो व्यक्तिगत जीवन जो पारिवारिक जीवन उसके ऊपर हमारी नया वाचा की कलीसिया। So let us uh, think about our family life, that is new covenant family life in the Lord. और आइए हम विचार करेंगे जो नए वाचा की जीवन में परिवार के जीवन के बारे में थोड़ा विचार। In this verse in John chapter 14 verse 26, we read that when the Holy Spirit comes, and the last part of the verse, he says, bring to your remembrance all that I said to you. What the Lord has taught us, the Holy Spirit will bring into our remembrance now. और यहाँ पे अगर हम 14 की 26 अगर पढ़ेंगे यूहन्ना का, उसमें जो अंतिम हिस्से में ये लिखा है, और जो कुछ ही मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। Yesterday we were considering about the divorce. The Old Testament permits divorce. They can write a certificate of divorce and give it, and they can send her away. But the New Testament, the Lord hates the divorce. हमें ये अगर आप पुराने नियम की बातों के कल हम कर रहे थे, उसमें ऐसे लिखा है जो तलाक के बारे में वो वहां पे अनुमति देता है, बट नया नियमों में जब हम आते हैं यीशु उसको नफरत करते हैं, मतलब पसंद ही नहीं करते हैं। Matthew chapter 19, verse 3. मत्ती 19 का 3, मत्ती 19 का 3। In verse 3, someone, a Pharisee, came to Jesus to test him. He was asking, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? और यहाँ पे ऐसे लिखा है, तब फरीसी उसके परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगा, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी का त्यागना उचित है? But he was saying, the Lord was replying, many verses are there, but I want to point out verse 6. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let no man separate. और इस यहाँ पे मैं आगे प्रभु यीशु जवाब दे रहे हैं, बट मैं छठा वचन में मैं जाना चाहूंगा, अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करें। In verse 9 also we read like this, and I say to you, whoever divorces his wife except for immorality and marries another woman commits adultery. और नौवीं वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, 19 का, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करे वह करता है, और जो उसे छोड़ी हुई को विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। So the original intention of God is that no man should send his wife, giving her a certificate of divorce, and that we see that is his original intention that we see in the Old Testament also, that is in the book of Malkiah. और हम असली परमेश्वर के विचार को देखेंगे, और इसके साथ ये परमेश्वर ये नहीं करना चाहते हैं कि तलाक देकर उनके मतलब तलाक की पत्र देकर उनको त्याग दें, किसी स्त्री को त्याग दें। हम मलाकी किताब में इस बातों को हम पढ़ सकते हैं। I want to point out two important sentences in verse 2, Malkiah chapter 2, verse 15 and 16. और मैं दो वचनों को मलाकी किताब से पढ़ना चाहूंगा, 2 का 15, 2:15, is it right, brother? 15 and 16, brother. 15 and 16, the later part only. और 15 और 16 आखिरी हिस्सा हम पढ़ेंगे। I will read that. Take heed then to your spirit, and let no one deal treacherously against the wife of your youth. और 15 का मैं आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ। It is emphasized that we must be very careful about our spirit. और इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुमसे
कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करें। यहाँ पे हम आत्मा की बातों में भी इसको ज्यादा ध्यान दिया गया। In 16 also, so take heed to your spirit that you do not live treacherously. और हम 16वीं वचन में भी ये पढ़ सकते हैं, इसलिए तुम अपनी आत्मा के लिए आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। Yesterday, I was telling you that in the Old Testament, everything was external, and then the New Testament is inside. So, external divorce is physical separation. It was permitted in the Old Testament. Though in the New Testament it is not permitted, yet in our spirit, we may not be faithful to each other. और हम कल इस विषय के बारे में बात कर रहे थे, जो पुराने नियम के बात ये कहता है कि जो सारे बातों बाहरी तौर पे होता है, जो नया नियम में अंदरूनी, जो अंदर की आत्मा की बातों में ये सारे होता है, बट यहाँ पे जो आत्मा की बातों में कहा गया जो मलाकी में। So those who are husband and wives, they must be very careful. We must keep our spirit pure in the fear of God, that no husband should imagine even in his spirit somebody else other than your wife's in your heart. और पति पत्नी ये चौकस रहें, सावधान रहें कि हम आत्मा में और किसी के बारे में, मन ही मन में किसी के बारे में, किसी स्त्री के बारे में जो पत्नी है, पत्नी जो है किसी और आदमी के बारे में, और जो पति जो है किसी औरत के बारे में विचार भी ना करें। Similarly, the wives also should be very faithful to her husband, and never she should imagine even in the husband's place some other person. और उसी तरह स्त्री भी, जो पत्नी भी ही, किसी भी तरह के आदमी को अपने पति की जगह में रख के सोचना भी अच्छा नहीं है, If सही they नहीं do, है। if anybody does it, it is an adulterous spirit, which is abomination in the eyes of God. और ये जो अगर ऐसे कोई करेगा तो ये व्यभिचार की आत्मा है, ये परमेश्वर के नजर में घिनौना है। Only in this context, the Lord has given some license, some lenience to divorce. और इसी जगह में, इसी जो संदर्भ में परमेश्वर ने बहुत ही एक पतला एक रास्ता दिया है तलाक के लिए। So before marriage, people nowadays have boyfriends and girlfriends, and before they are born again, they may have such worldly friends, boyfriends or girlfriends, or in the workplace, they may have some friendship, which they would not have judged themselves whether it is a healthy relationship or not, whatever it may be. But immediately you got married, on that day itself, one person should be faithful in his spirit to his life partner. और आजकल चल रहा है कि काम करने की जगह में कहीं भी वो आप जाके देखेंगे, जो बॉयफ्रेंड जो गर्लफ्रेंड की सिस्टम चला हुआ है। और जब भी शादी करेंगे, एक दूसरे के बारे में, मतलब जो पत्नी को छोड़ के या पति को छोड़ के विचार करना पाप है। The Bible is giving a clear teaching through the Holy Spirit in the letters about how the husband should behave with his wife, how the wife should behave with his husband, and how to bring up the children, and how to deal with the servants. So a clear teaching is in the New Testament in the letters of the apostles. That is through the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों की जो पत्रियों में जब हम जाएंगे, पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, और घर में काम करने वाले नौकरों के साथ भी कैसे व्यवहार करना है करके हम विस्तार से हम जान सकते हैं। So in verse Ephesians chapter 5 verse 21, this teaching starts there. Ephesians chapter 5 verse 21. इफिसियों 5:21। There we find that be subject to one another in the fear of Christ. और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। See, in our places,
You see, the word culture, culture, the etymology of culture is that is root word of culture is cult, which means religious customs. और हमारे संदर्भ में अगर हम जाके देखेंगे जो कल्चर, जो संस्कार करके जो हम एक दूसरे को हम देखते हैं, एक दूसरे के जीवन में जो देखते हैं, उस कल्चर जो अंग्रेजी वर्ड का जो शब्द का जो हम मूल रूप से उसको मतलब समझेंगे, कल्चर मतलब कल्ट है। कल्ट मतलब जो एक गलत सिद्धांत जैसे एक शब्द है। Different religious people have different cultures. For example, some religions permit the husbands to marry even 4 wives. और अगर आप देखेंगे हर धर्म का अलग-अलग कल्चर है, मतलब संस्कार है, और वो है किसी एक धर्म में मैं जानता हूँ, एक आदमी 4 औरतों को शादी कर सकता है। Women are not permitted to do that. और औरतों को ऐसे अनुमति नहीं है। So different cultures teach different things. और अलग-अलग कल्चर अलग-अलग शिक्षा में देता है। But here we read a different thing, that is, husband should submit to wife and wife should submit to husband. और यहाँ पे अगर हम अलग तरीके से एक शिक्षा को हम पढ़ते हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को अधीन रहें। But the next verse says, wives be subject to your own husbands as to the Lord. और अगला वचन जो 22वें वचन में ये पढ़ते हैं, हे पत्नियों अपनी अपनी पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। And also it says in verse 23, for the husband is the head of the wife. और अगला हम वचन में 23वें वचन में पढ़ेंगे, क्योंकि पति पत्नी का सर है और जैसे कि मसीह कलीसिया के सर हैं। Then we read in 25, husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her. और हम 25 वचन में इसी तरह पढ़ते हैं, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। Why this teaching? there क्यों are ये शिक्षा? there are areas where the husbands have to be in subjection to their wives. और ऐसे ही शिक्षा है कहीं कुछ क्षेत्र में पति भी अपनी पत्नी की अधीन रहे। Suppose the wife says, see, the way in which you are speaking or behaving with such and such a woman is not right in my sight. The husband has to take it to heart and submit to her. और पत्नी ऐसे कह रहे हैं, मेरे नज़र में उस स्त्री के साथ आप जैसे बात कर रहे हो, मेरे नज़र में वो बिल्कुल सही नहीं लग रहा। इस विषय को अगर ये जब पति सुनता है, उसको मन में लेना ज़रूरी है। Similarly, there may be certain other topics also. उसी तरह कई विषय और भी हो सकता है। The husbands should not intimidate their wives, saying that I am the husband, you have to obey. You should not teach me. I am the man, I can behave in any way, but you should not do that. और आदमी ऐसे नहीं कह सकता धमकी देकर, भाई मेरे मर्जी है, मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँगा करके। But the Lord has taught us through the Holy Spirit, you have to submit to your wife in these things. और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ये शिक्षा देता है पत्नियों को इसी तरह पत्नियों के अधीन रहना। There are many other things. The husband is the head of the wife, so she has to obey and submit to her husband. और हम कई और बातों को पढ़ते हैं, बट वैसे ही आदमी के अधीन वाइफ रहना जरूरी है। आदमी की मतलब पति के अधीन रहना जरूरी है पत्नियों को। In this context, I want to read from first Peter chapter 3. इस संदर्भ में मैं पहले पत्र से पढ़ना चाहूंगा। There we read that in verse 6, Sarah is stated to be an example. Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. और First Peter chapter 3 verse 6 first part. ओके, थैंक यू। लिखा है छठे मतलब
पहला पत्रस 3:6 में ये ऐसे लिखा है, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और स्वामी कहती थी। This is stated in Genesis 18:12. इसको We हम not read पढ़ it. There we can see that Sarah is laughing, saying in his heart, saying to herself, my Lord is old aged. How can he have sexual relationship with me? In that way, he is laughing to herself, but to stating to herself, addressing Abraham as Lord in his spirit, not outwardly. और मन ही मन में सारा यह कहती है, इस वचन को हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 18:22 में। वो मन ही मन में ये कहती है कि मेरे स्वामी को ये उम्र हो गया, मेरा भी उम्र हो गया, हम शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, कैसे हम संतान पा सकते हैं। So the sisters, that means born again sisters in our churches who are wives, should consider this, whether you are looking up to your husband, whether you are, there may be many imperfections, immaturities in your husband, just like you also have. But the word of God says, Sarah, who is stated to be a good example to the New Testament wives, says that she respected her husband, stating him as Lord in his spirit. और हम यहाँ पे ये बात हम देख सकते हैं, सारा जैसे अपने पति को स्वामी कहती है, वैसे हम नया नियम के कलीसिया के लोग हम ये बात ध्यान दें अपने पति को कि उनका अधीन रहने की बात, हाँ, उनमें कुछ कमियां हो सकता है, कमजोरियां हो सकता है, जैसे आपके अंदर भी है वैसे ही इनके अंदर भी होगा, बट हम आत्मा में उनका अधीन रहना बहुत ही जरूरी है। See, in some of our homes, the wives may be saved and their husbands may be unbelievers. To them, it is written here in verse 1. और कहीं ऐसे भी हो सकता है, और जो उद्धार नहीं पाया हुआ एक व्यक्ति हो सकता है पति, पहले वचन में 3 का पहले पत्रस में हम पढ़ते हैं। Here it is written that you wives be submissive to your own husbands, even if they are unbelievers, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word. That means without teaching, by the behavior of their wives. आमीन। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं। So I have already told you that the New Testament life is inside, not outside. So as they observe your chaste and respectful behavior, in verse 2 we read, और हम देखते हैं, मैंने जैसे नए वाचा के नए जीवन की बात जब आती है, ये बाहरी तौर पे नहीं, अंदर की बातें हैं। यहाँ पे एक देखिए अंदर की पवित्रता देखकर वो खींचा जा रहा है जो व्यक्ति वचन को नहीं मानता है। in verse 4 we read that, let it be the hidden person of the heart with the imperishable quality of gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. और यहाँ पे हम चौथी वचन में ऐसे पढ़ते हैं, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और खुद मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। In many of the churches, I have noticed that many women have removed their golden ornaments and they appear empty outside, but inside of their spirit, they are rebellious and disobedient, and they don't have a quiet spirit and submissive spirit, and they don't respect their husbands in their home. और कई चर्चों में हम ये देखते हैं, कई कलीसियाओं में ये देखते हैं, बाहरी तौर पे आप उनके जो जेवर वगैरह पहनते हैं उसको उतार चुके हैं, बट अंदर देखेंगे वो बहुत विरोध की या झगड़े की आत्मा से भरे हुए लोग हैं, किसी की या अपने पति की बात नहीं मानते हैं। In some cases, I have noticed such women, such sisters come into the church and they are
very fervently praying with a loud cry, and their voice is very humble, and even if you hear something about her in they fight in the water tapes or in the house, they fight with the husbands. We cannot believe that. In और such a way they हम behave ये in the church. और उनकी प्रार्थना को अगर हम चर्च जब आते हैं ऐसे स्त्रियां कोई और हम चर्च जब आते हैं हम देख सकते हैं उनकी लगातार रोते हुए प्रार्थना और नम्रता को हम देख सकते हैं और जब पति की ओर से ये शिकायत आती है ये घर में से लड़ती है करके जब हम सुनते हैं तो ये विश्वास योग्य ही नहीं होता है। It is hypocrisy. The New Testament is insisting on women to be submissive in their spirit, faithfulness in the spirit, obedience, and honoring their husbands in their spirit. That is, it is emphasizing the attitude. और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये एक पाखंडी जीवन है। अगर हम अंदर से हम पति की आज्ञा नहीं मानते, अंदर से अगर हम किसी की मतलब आत्मा से अगर हम किसी की शब्दों को नहीं सुनते हैं, ये सारे जो है ये पाखंडी जीवन है। Then is Peter writes on in verse 7, you husbands in the same way live with your wives in an understanding way, as with someone weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace. और हम 7वें वचन में ऐसे पढ़ते हैं, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन की वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं की रुक ना जाएं। So here he pays an emphasis on if they don't live with them in an understanding, will be hindered. और I'm sorry, unable to hear it. If the husband does not love her wife and don't take care of her needs, and if he doesn't honor the wife in her needs, then his prayer will not be answered by God. और प्रार्थना इन पतियों की प्रार्थना नहीं सुना जाता है जब उनकी आवश्यकताएं पूरा नहीं करते हैं, उनकी बातों को सुनते नहीं है, उनसे प्यार नहीं करते हैं। So here in Ephesians chapter 5 verse 25 we read like this. इफिसियों 5:25 हम ऐसे पढ़ते हैं, Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her. और हम यहाँ पे ऐसे पढ़ते हैं इफिसियों उसका 5:25 ऐसे पढ़ते हैं, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। The wife of the Lord Jesus means we, the church. और यहाँ पे परमेश्वर की पत्नी मतलब कलीसिया। When he accepted us in the place of his wife, we have spots and wrinkles in our faces. और हमें परमेश्वर जब दुल्हन के रूप में ग्रहण किया, हमारे चेहरों में और कई सारे जो दाग धब्बे था। He committed himself to us and he cleansed us by the washing of water with the word and sanctified us. और उन्होंने हमारे लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और हमें उस वाणी के द्वारा जो हमें हमारी हर एक दाग धब्बों को शुद्ध किया, वचन के द्वारा। We were not clean, but the Lord himself cleaned us. और हम नहीं, वो परमेश्वर खुद हमें शुद्ध किया। He was ready to even clean the dirty legs, foots. और हाँ, उन्होंने उनके पावों को भी शुद्ध करने के लिए इसी तरह himself for us. और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। We are considered to be, the church is considered to be the wife of Jesus. To be with the wife, he came from the Father. He left the home
in heaven. इस धरती पर खुद ही आ गए। So that is written in verse 31. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and the two shall become one flesh. और यहाँ पे 31वें वचन में ये हम पढ़ होंगे। So, dear brothers, we are called to love our wives as Jesus loved the church. और हाँ, प्रिय भाइयों, हमें बुलाया गया पत्नी अपने पत्नी को प्यार करने के लिए परमेश्वर के द्वारा। We have to help one another so that we don't fall in adultery. और एक दूसरे को मदद करें ताकि व्यभिचार में ना पड़े। We also should help one another physically so that each other's weakness don't overtake the other one. और हाँ, एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को कमजोरियों के कारण एक दूसरे को हम कमजोर ना समझें। We should not raise our voice unnecessarily, stating that I have the power, I am the man, against the wife. और हम एक दूसरे पर अपनी आवाज ही ना उठाएं, क्योंकि मैं हूँ इस घर का पति हूँ। Jesus was equal to the Father in heaven. और स्वर्ग में परमेश्वर के बराबर है यीशु Yet मसीह। he submitted himself to the authority of the Father. और फिर भी उन्होंने अपने आप को पिता के सामने समर्पित किया। Husband and wives are equal, but yet the wife has to voluntarily submit to the authority of the husband, respecting him and honoring him. और पति पत्नी बराबर हैं, फिर भी पति के अधीन उनके जो देखने में पत्नियों को करना If a चाहिए। sister considers that his husband should be respected by other people around them, then she has to deal with him as king, so that और she can be called a queen. और अगर किसी भी स्त्री अपने पति को दूसरों से इज्जत पाते हुए देखना चाहते हैं, खुद ऐसे उनको इज्जत करें राजा जैसे, ताकि वो भी खुद भी मतलब रानी बन जाए। Before others, if the wife is treating her husband as a servant, and she will be treated by others as the wife of a servant. और अगर अपने पति को नौकर जैसे और वो उनके साथ व्यवहार करें, तो दूसरों के सामने खुद भी एक नौकर की पत्नी ही बनेगी। No rebellious wife will be respected by other people. और कोई जो विरोध करने वाले पत्नी दूसरों से इज्जत पाएगी। Moreover, if the husband and wife are fighting with each other, raising their voices in the home, and the children are watching, और अब और भी हम देखेंगे, अगर पति पत्नी जोर जोर से एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, इन बातों को बच्चे देखते हैं, सीखते हैं। in such homes, if the children are brought up in a bad atmosphere, they will grow and become not good God-fearing children. They will not have any belief in the Lord, and they don't have any respect for their parents also. और इसी माहौल में जो पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, माता पिता के झगड़े को देखते देखते बड़े होने वाले बच्चे जो हैं, वो आगे जाके विश्वास में या किसी तरह के अच्छे गुण में वो आगे नहीं बढ़ेंगे। So we have the responsibility of bringing up the children in the fear of God. और हमारे पास वो जिम्मेदारी है हमारे बच्चों को परमेश्वर की भय में आगे बढ़ाना। In words and deeds, our attitude and behavior, and how do we deal with the other people, even the beggars, and how do we respect the older people, all these things are practical teaching to the children. और हम ये सारी बातों हमारे जो वचन और जो जीवन दोनों, और दूसरों के साथ, आस पड़ोसी के साथ, और जैसे एक भिखारी आए उनके साथ भी हम कैसे व्यवहार करते हैं, ये सारे हमारे बच्चों के लिए रोजाना की एक शिक्षा है। Many parents expect their children to be God-fearing and obedient to their parents. और कई माता पिता ये सोचते हैं मेरे बच्चे परमेश्वर की और हमारी भी आज्ञाकारी बने। Many believing parents are teaching their children to read the Bible and obey. और कई विश्वासी माता पिता अपने बच्चों को वचन पढ़ने के लिए बोलते हैं।
when they themselves are not obeying the commandments of the Lord, and their attitude towards money, attitude towards the older people, husband and wife, each other, they are closely watching them. Whatever they are speaking through the words, it does not go to their heart. Only the examples what they see will go to their heart. और वो लोग ये देखते हैं परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की बातें मानते हुए नहीं देखते हैं और उनके जीवन को देखते हैं, और ये सारे उदाहरण उन बच्चों, उस बच्चों के मन में जाता है और वो उसी के अनुसार बड़े होते हैं। In Ephesians chapter verse इफिसियों 1 to 4, a clear 1 से instruction हम 4 given तक about पढ़ते the हैं, parents-children relationship. और माता पिता और बच्चों की बीच की जो रिश्ता है उसके बारे में लिखा है। There, the fathers are given the responsibility to bring up the children, not the mothers. और यहाँ पे बच्चों को बड़ा करने का जिम्मेदारी पिताओं को दिया गया। In verse 4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। Our Lord Jesus Christ has taught us that we should not love our children more than God, more than the Lord's commandment. यीशु ने ये बात हमें सिखाया, अपने बच्चों को यीशु मसीह से ज्यादा प्यार ना करें। When they are in younger age, that is children, we have to discipline them if they disobey the parents or don't respect the older people or speak lies. और हम इस छोटे उम्र से बच्चों को ये शिक्षा दें, बड़ों का आज्ञा दें, आज्ञाकारी बने। Even though husband and wives have some disagreements in some matters, it should not be openly known to the children. और अगर पति पत्नी के बीच में कोई ये किसी बातों में असहमति है, तो ये बच्चों को खुल्लम खुल्ला पता ना चले। The children will be, it will be an obstacle to the children. और ये एक बड़ी रुकावट बनेगा बच्चों के लिए। They can speak to each other separately without letting it known to the children. और हाँ, बच्चों को जहाँ बिना जाने और अपने पति पत्नी आपस में मिलकर बात कर सकते हैं। In Colossians chapter 3:19, we read like this. कुलैसियों 3:9 में इसी तरह हम पढ़ते हैं, You see, husbands, love your wives and do not be embittered against them. और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने कुलैसियों 3:9 3:19. ओके सॉरी 3:19 हम ये इसी तरह पढ़ते हैं, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। We must forgive one another. हम एक दूसरे को माफ करें। Even if we have done something wrong in the presence of the children, we must be openly apologize, and also we have to treat the children rudely, then we have to apologize to them also. It is a good example, even though we have failed. और अगर बच्चे के सामने हमारे अपनी कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम खुल्लम खुल्ला उनसे क्षमा मांगने की शर्माना नहीं चाहिए। Please go through Colossians chapter 3:18 to chapter 4 verse 1, and there are many things written about the relationship between the husband, wife, parents, and the children, and also the masters and the slaves. और हम कुलैसियों 3:18 से हम 18 पढ़ें और 4:1 से पढ़ें, तो पति पत्नी की और बच्चों की, माता पिता की रिश्ता और नौकर नौकरानी के साथ में विगार, ये सारे बातों को हम लिखी हुई हम पढ़ते हैं। Ephesians chapter 4 verse 26. इफिसियों 4:1 इफिसियों 4:1। So if we have raised our voice and if we are for any reason we are angry, then that anger should come down before the sun go down. और अगर हम एक दूसरे के प्रति गुस्सा है, तो वो सूरज डूबने के पहले हमारे गुस्सा ठंडा हो जाए। Suppose if you let the anger go before sunset, that means before going to bed, then the devil will get an opportunity to get into the home. अगर हम मतलब अंधेरे होने के बाद भी अगर हमारे गुस्सा बढ़ते जाएं, मतलब सोने के पहले, बिस्तर में जाने के पहले बढ़ते जाएं, तो वो वहां पे शैतान घुसने का संभावना बढ़ जाता है। That is in verse 27. Do not give the devil an opportunity.
और हम 27 में पढ़ते हैं, इज इट इन 4:27? Yes, brother. 4 Ephesians 4 chapter 4:27. और 4:27 में ये चीज हम पढ़ते हैं। So for this reason, we have to reconcile with each other as quickly as possible. और इसी कारण हम एक दूसरे के साथ समझौता जल्दी कर लें। Sometimes if there is a disagreement or disunity among the husband and wife, even they join together and pray together, that prayer will not be answered, and Satan will come in between them, and the children will be touched by him. Calmed faith. और पति पत्नी के बीच में सहमति कई बातों में नहीं है, और आपस में लड़ाई झगड़े के साथ अगर रात को प्रार्थना मिलके भी करते हैं, वो वहां पे शैतान घुसकर बच्चों को वो कुछ गलत रास्ते में अगुवाई कर सकता है। In case the children are affected by some sicknesses, and the husband and wife should judge themselves and reconcile their disagreements and come together, forgive each other and pray for the child, and God will heal. और माता पिता के बीच में कुछ बातों की कड़वाहट है, उसी कारण कई बार बच्चे बीमार हो जाते हैं। जब एक दूसरे को माफ करके प्रार्थना करेंगे, प्रभु शायद तो उनको चंगा कर सकता है। There we read in 4:29, let no unwholesome word proceed from your mouth, even if you are angry. और 4:29 में ये पढ़ते हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। That is why it is written in 26, be angry and yet do not sin. So if some unwanted words comes out of anger, और then it is a इसलिए हम sin. 26 में ये पढ़ते हैं, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य का अंत होने के तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, इसी कारण तो शैतान की मौका ना मिल जाए। Sometimes the small children may be living, standing or sitting close to us, but if when we say something repeatedly, they might not have listening to us. Then we may have to raise our voice. It is not sin or anger. और We need not feel guilty of it. और छोटे बच्चे हमारे हाथ में होते हैं, वो हम बार बार कई गलत शब्दों को प्रयोग करते हैं, हमें लगता है वो ध्यान नहीं दे रहे, पर वो सीखते जाते हैं। So, dear brothers and sisters, there are many detailed lessons to us from the epistles written by the apostles by the inspiration of the Holy Spirit. परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से प्रेरितों द्वारा कई पत्रियों में हमें पारिवारिक जीवन के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। Suppose we engage some slaves or any people are working under our authority and power, then we may have to deal with them justly and fairly. और हमारे हमारे साथ काम करने वाले या हमारे अधीन काम करने वाले अगर नौकरानियां हैं, उनके साथ कैसे न्याय अनुसार व्यवहार करें, वो भी हमें यहाँ पढ़ने की मिलता है। Because God is the Lord over the master and also over the servant, and both of them should give an account to God. और नौकर और मालिक दोनों की स्वामी तो एक ही है, परमेश्वर, उनको हम हमारी हिसाब देना है। If we are really godly people, the servants in our house and those who are working under us can clearly find whether we are truly spiritual or not. और अगर हम परमेश्वर के व्यक्ति हैं, तो हमारे घर में, हमारे कंपनी में काम करने वाले लोग हम कैसे विश्वास करके वो पहचाना जाना चाहिए। If we are dealing with the servants and those who are working under us rudely, and we don't deal with them gently and respectfully and lovingly, we may have to correct them, but we have to do it in a gentle spirit and loving spirit. Otherwise, our spirituality is useless. और हमारे साथ काम करने वाले अगर शायद वो विरोध करने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले हो, फिर भी हम उनके साथ ऐसे शांति के साथ, अच्छे आत्मा के साथ उनके साथ व्यवहार करना जरूरी है, ताकि हमारे जो विश्वासी की जीवन उदाहरण के रूप में दिखाई पड़े। In verse 5:32 we read, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. और इफिसियंस 5 सॉरी 4:32. ओके, 4:32. यस, थैंक यू। 4:32
एक दूसरे से कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसा ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। In chapter 5, verse 8 and 9, we read like this: For you were formerly darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. और 5 का 8 और 9 में इसी तरह हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। Suppose if you do some business or exercise authority over others, those people around us, those who are not saved, they are living in darkness. They may have some other way of dealing with people, but we people, the children of light, should not copy their customs and behavior. और हम लोग किसी तरह की व्यापार करते हैं या किसी तरह की मतलब अधिकार में रहते हैं, हमारे साथ काम करने वाले के हमारे बारे में दिखाई पड़ना चाहिए। वो लोग कैसे भी दूसरों के साथ व्यवहार करें, हमसे वो सीख जाना चाहिए, उनकी बात हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। So in Romans 13:8, as a family, we must not get into debts. We must learn to live within our earnings. और हम रोमियो की 13 के 8 में हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी हम जो आय होती है, उसी जो कमाई होती है, उसी के अंदर परिवार चलाना सीखना चाहिए। We are clearly taught in 1 Timothy chapter 6, verse 6 that godliness with contentment is a gain. That means we must live within our financial boundary. और पहले कुरिन्थियों 6:6, इज इट Yes, राइट? brother. ओके। पहले कुरिन्थियों 6 का 6 में हम ये पढ़ते हैं, तुम भाई भाई में फर्स्ट कुरिन्थियन 6:6, No, इज इट? 1 Timothy. 1 Timothy ओके ओके ओके, chapter सॉरी। 6, verse 6. ओके ओके, 1 तीमुथियुस 6 के 6 में हमें ये वचन मिलता है, जो परमेश्वर में है, जो संतुष्टि है, वो हमारी बड़ी कमाई है। So, dear brothers and sisters, if we are living within our financial limitations and teach our children also that we should not copy those children around us, those who are celebrating birthday and parties, and they are always fond of new dresses and tasty foods. No, we have to live within our bounds, and the Lord can extend and enlarge our boundary at His own time. और हम बच्चों को ये सिखाएं कि हम जैसे कमाई हमारी होती है, उसी में जैसे परिवार चलाते हैं, उसी के द्वारा बच्चों को भी ये शिक्षा हमें देना चाहिए। और दूसरे बच्चों के जीवन में जैसे आस पड़ोसी होते हैं, उनके जीवन में दाम दुम से जैसे जन्मदिन मनाते हैं, हर कुछ करते हैं, वैसे उसी तरह बातों को सीखें ना, और जो कमाई है उसी में जीना सिखाएं। We must not try to provide by getting loans and all that to our children, whatever they demand. We have to teach them, see, the Lord will give us if we ask them in His own time. Till that, we have to wait and we have to live within our bounds. You should not get into debt unnecessarily because the children are asking. और परमेश्वर अपने उचित समय पर सब कुछ हमें देगा, और तब तक हमारे पास जो है उसी के द्वारा हमें परिवार या व्यक्तिगत जीवन चलाने के लिए हमारे बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, और कर्ज वगैरह लेके खुद को नहीं फंसाना चाहिए। Let the children know what is our financial condition. और बच्चे जाने और हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। We have to teach them faith in the Lord, that the Lord will provide. Let us ask. और हमें बच्चों को विश्वास के बारे में सिखाना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो हमें देगा करके सिखाना चाहिए। At the same time, we should not get into debt to provide their needs and without letting them know that we are unable to provide for their needs. और वो बच्चे जान जाएं हमारे ओर से नहीं हो रही है, और खर्च में खुद को नहीं फंसाना चाहिए, ये भी बच्चे जाने। May the Lord open our eyes to see the New Testament family life, which the Lord wants us to walk through. और हमें परमेश्वर आंखें खोलें, और कैसे नया नियम की वाचा के जीवन में पारिवारिक जीवन कैसे होना है। Thank you for the excellent translation, brother. Thank you for all of you to listen today also. If God willing, let us meet tomorrow also. Thank you, brother. Do you hear me? Yeah, thank you very much, brother. When we are hearing this type of words, we need to understand one thing very clearly.
Is तो हम जब translated. ये वचन हम सुन रहे हैं तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या सच्चाई है। See, brother, I know this brother. I was a very young man, age of 91, 1997. My wife belongs to brother church. वन सेकंड My सर। brother belongs to, my wife belongs to brother church. तो मैं प्रभु के दास को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मेरे उम्र से बहुत बड़े हैं और मेरी पत्नी उनके चर्च से बिलोंग्स करती है। See, I closely watch this brother. It is not at all a word. It's a life of so many years. Don't think it is not at all a message. It's a life of his own experience. तो मैं प्रभु के दास को गहराई से जानता हूँ। ये बात उनके मुंह से निकली हुई बात नहीं है, वो उनके जीवन की अनुभूति है। मैं So, उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। जो भी प्रभु की वचन वो बांटते हैं, वो उस वचन में अपने जीवन को संचालित करते हैं। once again, I say to you, I know this brother, 1997. My wife belongs to this brother. This brother house, my wife house is very close. Is very close. We know very well. It is not at all a word. It's a life. मैं उनको 1997 से जानता हूँ और प्रभु के दास के कलीसिया से मेरी पत्नी आती है और उनके घर और मेरे घर हम आपस में बहुत जान पहचान है। जो भी परमेश्वर के वचन वो बांटते हैं, वो बस वचन ही नहीं है, वो उनके जीवन की एक एक्सपीरियंस है, अनुभूति है। So the new covenant, it is exactly the second floor. Is a family life. I know very well. Brother is having 3 children. Even one children is a disabled child. Even then, I know very well how the brother was living among them. It is not at all a praising a man. The new covenant life means the second floor family life supposed to be properly built up. तो आज जो हम सुन रहे हैं, जो एक घर का दूसरा छत का बारे में हम सुन रहे थे, जो कि नए नियम की एक फैमिली परिवार के विषय में हम सुन रहे थे। और मैं जानता हूं प्रभु के दास के उनके 3 बेटे हैं। वो 3 बेटों में एक बेटा जो विकलांग है, उनके साथ वो परिवार के साथ कैसे जीवन बिताते हैं, मैं उनको अच्छा से जानता हूं। और आइए हम इस नया नियम की जो फैमिली है, परिवार है, इसके बारे में हम गहराई से जाने और हम उसी तरह अपने परिवार को आगे बढ़ाने में हमें जाना जरूरी है। If today we can see that we not at all able to say this type of witnesses today among the Christian workers. तो आज के दिन में हम ये क्रिश्चियन विश्वासियों के बीच में नहीं देख सकते हैं जो आज के वचन आज हम सुने हैं। So that is the reason new covenant now. There is a great new covenant promise is written in Matthew chapter 18:18. तो आज हम जो नया बच्चा के बारे में सुन रहे थे, और नया बच्चा एक जो क्या बोलते हैं प्रॉमिस है, जो मत्ती के उसका 18वां अध्याय उसके 18वां पद में लिखा है। So Matthew chapter 18:18, it's a promise of new covenant. और नए नियम का जो प्रतिज्ञा है, जो प्रॉमिस है, वो मत्ती 18 का 18 पद में लिखा है। And I tell you this, whatever you bind on the earth is bound in heaven, and whatever you free in the earth will be freed in heaven. और इसमें लिखा है, जो कुछ तुम धरती में बांधोगे वो बांधा जाएगा स्वर्ग में, और जो कुछ तुम धरती में खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। See, we know very well now, verse 19, it's talking about what we are hearing today. It is sum up is written, Matthew chapter 18:19. और जो कुछ आज हम सुन रहे हैं वो 19वें पद में एक समरी की तरह लिखा हुआ है।
Okay, Matthew chapter 18, 19 says like this. Matthew chapter 18, 19. I also tell you this, if two of you agree down here on earth concerning anything, and you ask for, my Father in heaven will do it for you. और मत्ती उसका 18वां पर्व अध्याय उसका 19वां पद में ऐसे लिखा है, अगर जो कोई भी दो व्यक्ति एक मन से परमेश्वर को मांगेंगे तो वो पूरी होगा, और जो कुछ वो करेंगे वो सिद्ध होगा। See, verse 20 is talking about two or three. Verse 19 is talking about two. You understand who is the two people? और एक पद में लिखा है दो और तीन बल के, और एक अलग पद में लिखा है दो, तो वो दो कौन है? The two means husband and wife. I take it like this. The second floor of a new covenant. तो मैं सोचता हूँ जो दो बोल के लिखा हुआ है वो और कोई नहीं, मेरे हिसाब से वो पति और पत्नी है, जो कि एक घर का दूसरा मंजिल फैमिली के बारे में बोलते हैं। The two of you agree. The two of you live a peaceful life. Two of you have an understanding. Two became one. Jesus is telling my Father in heaven to do anything for you. That is a great thing, right? अगर दो जन जो भी बातें हैं वो उसमें समझौता करेंगे, एक अच्छा उनका सुझाव है, और जो कुछ भी वो राजी होंगे, तो परमेश्वर उन दोनों के विषय में जो कुछ करना चाहते हैं वो करेंगे। So what we lost in the Garden of Eden, two became one. We lost it, no? The new covenant come and recover the same thing. Husband and wife became the understanding, obeying, what we loving, what we heard. So many things we are hearing, right? That became one. We will have a promise. The promise will be fulfilled in our life. That is called new covenant second floor. जो हम खोए थे एदन की बगीचा में, जो आदम और ईव खोए थे, वो चीज फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है। और अभी हम दो जन एक तन है, अगर जो कुछ हम पर आसपास खुद अगर राजी होंगे और समझौता अच्छा रहेगा, तो परमेश्वर हमें जो कुछ हम परमेश्वर को मांगेंगे वो परमेश्वर हमारे लिए जरूर करेंगे। Not only we lost in the Garden of Eden, our culture, we are hearing today, no? Our culture spoiled us. Even our culture spoiled us, I tell you. तो बस वो जो एदन की बगीचे में जो हम खोए थे वो चीज नहीं, आज हम सुन रहे थे जो संस्कृत के बारे में, जो हमारा संस्कार है, वो संस्कार भी हमें मतलब संपूर्ण रीति से हमें खो दिया है। We need to have a new culture, understanding husband and wife. The wife must be what are the things we are hearing. The husband must be what are the new culture of Jesus need today. That is called New Covenant Church. That is called New Covenant families, right? तो आज हमें एक नया संस्कार के हिसाब से जीना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है नया बच्चा के समय में। तो परमेश्वर हमें चाहता है एक नया बच्चा में एक नया फैमिली कैसे परमेश्वर की रीति से चलना चाहिए। See, verse 20 says, Matthew chapter 18, 20, for where two or three gather together, because they are mine, and I will be right there among them. In my Living Bible says like this. तो जब हम मत्ती 18 का 20वां पद पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जहाँ कहीं भी दो और तीन जन इकट्ठा होंगे, मैं उनके मध्य में हूँ, और जो कुछ वो मांगेंगे मैं उसको वो पूरा करूंगा। Two or three gather together, they are mine. A husband want to be a one with the wife. God is telling they are mine. Amen. जहाँ पर दो या तीन जन इकट्ठे हुए हैं वो मेरे हैं, और जहाँ पर दो भी इकट्ठे हुए हैं वो भी मेरे हैं। A wife want to obey to his husband. God is telling is mine, right? अगर पत्नी अपना पति का बात माने
और उसी हिसाब से जिए तो वो मेरी है कि परमेश्वर यहाँ पर बोलते हैं। But because where two or three gather together, because they are mine. क्योंकि वहां पर जो वो 2 जन और 3 जन इकट्ठा है, उनका जो सोच है, इसीलिए वो मेरे हैं। And also I will be right there among them. और उसी तरह मैं भी उनके मध्य में हूँ। Say, what is the second floor? Our second floor, I tell you, you are hearing so many cracker sound now among around you, right? You are hearing so many cracker sound, right, today? तो आज हम जो सुन रहे थे दूसरे मंजिल के बारे में, आपके चारों तरफ आप अलग अलग शब्द सुन रहे होंगे। I tell you, brother, you hear that cracker sound, no? I tell you, what is the technology behind that cracker sound, no? There is a chemical and one tree and then papers, all the things mixed together properly, united together properly, then only we will able to enjoy the cracker. Otherwise, the cracker will not give the joy to us. Please understand the logic today. This is a family life, husband, wife, and children, right? तो आज आपके जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो पेड़ और विभिन्न प्रकार जो पत्ता है वो सब इकट्ठा करके जो बनाया हुआ है, अगर इसमें अगर हम वफादारी से रहेंगे तो हम वहाँ पर हम आनंद कर सकते हैं। अगर उसमें हम ठीक से नहीं रहेंगे तो हम सारे चीज को हम खो देंगे। तो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, उसी तरह परमेश्वर की जो फैमिली है उसको हम बढ़ा सकते हैं। A cracker will give the much more sound means, you know what is the reason? There is a close tightness is inside. That chemical and then fire and then outside paper, all the things mixing together very closely. That is the reason the cracker will give the great sound. You understand the real happiness in the home, husband and wife. We united together, then God will be there. There is a crack sound will come, the joy and other things, right? So cracker means I could not understand, sir. Crack, Cracker. many. Sir, in Diwali sound is coming now. Cracker. पटाखे 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 Yeah, पटाखे, yeah. पटाखे फोड़ना। And brother, can you please continue? Okay. तो जो आज के Firecrackers. Firecrackers, yeah. John Yeah. Samuel sir will continue. Yeah, Samuel sir, please continue. Yeah. के अंदर जो दवाइयां मिलाकर उसमें एक धागे लगाकर और एक साथ जोड़ कर रखते हैं, और रखने से जब आग लगती है फटता है। वैसे आपस में परिवार पति पत्नी बच्चे मिले होते हैं तो उसमें खुशियों की आवाज फटता है। So remember our message today, the second floor of the new covenant. Please understand the sound of firecracker. जैसे पटाखे की आवाज है, वैसे हमारी परिवार जो है दूसरे मंजिल का जो नया नए नए का जो वाचा की जो जो परिवार है उसको हम खुशियों से पटने दें। See, I tell you like this, brother. This the cracker sound, no, it's based on the unity in the family. Obedient wife, a loving husband, obedient children, and obedient master. See, brother, how much they are united together. God also living center of that Matthew chapter 18. Whatever you cracker above, no, the heaven, no, is obeying that family. That is the real meaning of New Covenant. ओके, एक्चुअली ये जो 3 लोग के जो मिलावट है, वैसे दवाइयां 2 दवाई मिलकर और जो धागे मिलकर जो एक पटाखे से आवाज निकलता है, वैसे हमारे घरों में खुशियां की आवाज आना है। तो जो नए वाचा की दूसरी मंजिल जो परिवार है उसमें खुशियां आना है, तो ये किताब जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे घर में होना चाहिए। See, I want to close it here. We want to today introduce a new firecracker that is called New Covenant Family Cracker, right? और हम एक नया पटाखे की बात यहाँ पे करेंगे, वो है नए वाचा की परिवार।
What is the पटाखे की आवाज important? है, खुशियों की आवाज है। Brother, what is the specialty in the new covenant family cracker? The family cracker will connect it to the heaven and crack anything, brother. Why? Because there is a unity is there. Husband and wife and children, they are living together. God also there. That is the firecracker of new covenant life. वो ये एक नए वाचा की परिवार की जीवन एक नए पटाखे की तरह है। ये फटेगा, आवाज ही स्वर्ग तक गूंजेगा, और वो खुशियों की है, ये जो परिवार एक साथ रहने से। See, we need to understand. And then Brother John Samuel also, there is a 5 minutes is available. You also share some word and then you pray and close it. ओह, धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। वे परिवार के जीवन के बारे में मैं कुछ ही हमारे जो संपर्क में काफी पास्टरों के परिवार को देखता हूँ, लीडरों को साथ में मिलता हूँ, और हिमाचल मेरे मेन केंद्र है, जो सेवा की केंद्र है। मैं उनसे घूमता फिरता हूँ। उसी में जो ब्रदर सुधाकरण के फ्रेंड जो है, वो क्रिस्टी ब्रदर भी उसी तरह हमारी जो मैं चक्कर मारते रहता हूँ, लोगों को मिलता हूँ। एक चीज मैंने देखा, सेवा की एक बुनियादी जी बिल्कुल, मैं इस बातों को पहले भी मैंने सुना है, मैं मानता भी हूँ। व्यक्तिगत जीवन प्रभु में, और दूसरा पारिवारिक जीवन, तीसरा जो है हमारे सेवा के जीवन। मैंने व्यक्तिगत जीवन को बहुत सारे पास्टरों की, लीडरों के जीवन में हिलता डुलता मैं देख रहा हूँ। इसलिए ये आज मसीहत जो है मजाक बन गया, mockery, it's become mockery, the Christian ministry because of this situation। वो एक बहुत ही भयानक रूप ले चुकी है, क्योंकि एक कलीसिया का एक बिल्डिंग मानेंगे तो एक यूनिट है, एक परिवार। If you imagine the church is a building, that every brick is एक family, each and every family, so अगर एक ईंट टूटता है, एक ब्रिक टूटता है, तो कलीसिया टूटेगा। आज हमारे जो परिस्थितियों को देखिएगा, जो चर्च के अंदर जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिस्टम, शायद हमारे जो एल्डर जो हमसे बात कर रहे थे, इस मीनिंग को शायद उन्होंने नहीं समझा, क्योंकि वो आउटडेटेड व्यक्ति है ना। आज की जो समाज की बातों वो समझ नहीं रहे है ना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिस्टम मीन्स इसलिए फिजिकल रिलेशनशिप थिंग है। तो ये इसलिए एक भयानक परिस्थिति जो है, जो न्यू कॉवेनेंट चर्च या एक जो कॉवेनेंट मैरिड लाइफ को वो बिल्कुल नहीं समझ रहे, इसको चर्च अडॉप्ट करने लग गया, और मतलब चर्च के अंदर दुनिया आने लग गया। मतलब बाढ़ जो है, जो फ्लड है, ये घर के अंदर आने लग गया। जो वैसे ये जो बाहरी जो गंदगी हमारे परिवार के अंदर आने की वजह से आज परिवार कोलैप्स हो रहा है, क्योंकि चर्च पहले नहीं बनाया गया। जो church is not built yearly, the family built by God himself, instituted by God himself, it is the first church। ये एक पहला एक कलीसिया है, इसको शैतान बड़ी सफलता पूर्वक तोड़ने में सफल हो गया, है ना। कैसे? शिक्षा के बिना कैसे हमारे लोग बर्बाद होंगे। ये यशायाह किताब में जो वचन में लिखा है ना, मेरे लोग अज्ञानता के कारण बर्बाद हो रहे हैं। माई पीपल perish because of without मतलब बिकॉज देर इज नो नॉलेज। जो इस नॉलेज, जो परिवार ही परमेश्वर का पहला कलीसिया है, इसको आज ही तोड़ने में सफल हो गया। माता पिता जो पति पत्नी के जीवन नामदारी होते जा रहा है, इसको देखकर बच्चों के जीवन एक क्या बोलूं, मतलब अविश्वासी के जीवन दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आज हमारे परिवार को बनाने का एक एक विश्वासियों का, या एक एक भाई बहनों का एक जिम्मेदारी है प्रभु यीशु मसीह में। उसको अगर हम ध्यान देंगे, पहले सीखना चाहिए, है ना। देखिए, परिवार का एक परिवार को एक बिल्डिंग माने। इफ यू इमेजिन दैट फैमिली इज ए बिल्डिंग, देन द ईच एंड एवरी मैन या वुमन इज ए स्मॉल ब्रिक, जो एक छोटा ईंट है ना। ईंट में अगर कोई तरार है, कमजोरियां हैं, आप देखा होगा साउथ इंडिया में, अगर आप देखेंगे ईंट इतने सख्त नहीं होता जैसे उत्तर भारत में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पत्थर की तरह होता है ईंट मतलब ब्रिक है, वहां पे बहुत कमजोर होता है। उसी में भी जो लोकल ब्रांड आता है, जो लोकल सबसे बेकार ईंट आता है, वो मिट्टी के बराबर होता है। वैसे अगर हम एक बिल्डिंग को बनाना चाहेंगे, एक ब्रिक बहुत जरूरी है, एक ईंट बहुत जरूरी है। उस ईंट ये खुद ही अगर कमजोर है, आप सोच के देखिएगा कितने भयानक होगा उस बिल्डिंग का कोलैप्स होना। अब हिमाचल की पिक्चर तो देखे होंगे,
और मैं कई वीडियो मैंने डाला था, इतने भयानक मतलब विनाश को हमने देखा। कारण क्या है? वो जो नींव है, जो जो बुनियाद जो है, फाउंडेशन जो है, वो बहुत ही बेकार था। सरकार खुद मान रही है कि भाई ये बड़ा बेकार था। वैसे आज हमारी बुनियाद जो है, ये एक ईंट जो है कमजोर है। परमेश्वर एक व्यक्ति को क्यों बनाया, एक औरत को क्यों बनाया, एक बच्चे को क्यों दे रहे, ये हर चीज को हमें जानना चाहिए। एक व्यक्ति अकेला परमेश्वर के साथ संबंध ठीक है, वो पत्नी के साथ भी ठीक रहेगा। एक औरत अगर परमेश्वर के साथ संबंध ठीक है, रिश्ता ठीक है, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ठीक है, तो वो परमेश्वर के साथ ठीक है, तो व्यक्ति अपने पत्नी के साथ या पति के साथ या बच्चों के साथ ठीक ही रहेगा। इसलिए हम बुनियादी तौर पे एक एक ईंट को आज बनाएं। ये जो चर्च है, ये पहला चर्च परिवार है। परिवार को अगर हम बनाएंगे, जो बड़ा चर्च है, जो ग्लोबल चर्च या यूनिवर्सल चर्च, वो ठीक रहेगा। ये बड़ा दुखदायक परिस्थिति है। सच में एक रोने का मन है। मैं इसके बात करेंगे, सच में रोने का मन है। आज कई परिवार विचार में या गंदे रास्ते में, गलत रास्ते में, या लड़ते भिड़ते परिवार में मजबूरी से जी रहे हैं मसीह परिवार। इसलिए ये बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। प्रार्थना करें हम खुद इसकी, जैसे हमने बहुत अच्छी शिक्षा हमने जो हमारे एल्डर के द्वारा हमने सुना था, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, आई एग्री विद हिम। और हम लोग इसके लिए प्रार्थना करें, और वचन में और वचन की ज्ञान में और आगे बढ़ें पवित्र आत्मा के द्वारा। इसके बिना जो आज कलीसिया बन रही है, मोस्ट ऑफ द कलीसिया, जितने दूर तक मेरे खोज या रिसर्च कहता है, इट इज एब्सोल्युटली एक खोखलापन है। खोखलापन मतलब एम्प्टीनेस है, एम्प्टीनेस है, ये ग्लप है, ठीक है, नथिंग एल्स, इट विल रिमाइन नथिंग। I can guarantee by my small human brain. Thank you. Let us pray. That's what answer we have. Pray and Yeah, over close to it. you. Pray Thank and you. close it. Pray and close it. धन्यवाद मेरे पिता, इस सुंदर अवसर के लिए। हमारे दुख ये है कि आज हमारे जो सबसे पहला आपने हमारे बीच में रहने के लिए हमारे परिवार को आपने चुना प्रभु जी। आज परिवार की हालत ये है कि मसीह प्रेम में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि वचन में कमजोर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे बीच में नहीं है। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे परिवार के लिए, सुनने वाले के परिवार के लिए, हमारे जो आपकी दुल्हन जो पूरे यूनिवर्सल चर्च है, उसके लिए हम आज प्रार्थना करते हैं आपके वचन के आधार पर। मेरे पिता राजा आज वचन की ज्ञान आप दीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि आपके कलीसिया जो आपका दुल्हन है और पवित्र हो जाए। इस बुनियादी शिक्षा जो दूसरे मंजिले आज इस सेवा में वो परिवार है प्रभु, इस परिवार को बनाने में हम सबको एक बुद्धिमान प्रभु जी एक राजा मिस्त्री बनाइए, ताकि हम उस कलीसिया को बनाने पाए, उस परिवार को बनाने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Thank you very much. Our join on YouTube and then Zoom and other channels. And then we thank God. And tomorrow evening, 6 o'clock, we will join again. We'll continue the same topic. Our godly elder brother will share the word tomorrow also. Thank you all, brother. Please translate, brother. Please translate. फिर धन्यवाद जो आप लोग इस जूम मीटिंग में समय दिए हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं आने वाले दिनों में भी एवरिन आने वाले दिनों में भी ऐसे ही हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, और कल हम 6 बजे फिर से मुलाकात करेंगे। आप सब आपको निवेदन करते हैं, आप समय दिए और प्रभु के वचन को सुने।